Hello, everyone, and here's wishing you a very happy festive season ahead. Good wishes and good investments for a bright future to all of you, each one of you watching this video. In this particular small video, we are going to talk about Marico. This is one company which eventually is missed out by a lot of investors, but it's a very slow and steady moving stock. It has given good returns, I would say decent returns. बट अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग एट कंसिस्टेंसी इन योर पोर्टफोलियो, then I think this is one company which should be on your radar, on your investment horizon. Why do we say that? Let's have a look. So इसका ROE ROC हम लोग ने देखा है कंसिस्टेंटली, इट्स मच बियॉन्ड द लेवल्स, 33%, 30% के ऊपर कंसिस्टेंसी है. And why Marico? Why are we talking about Marico? What is so special? So apparently India में for every 10 coconuts that are sold in the country, 7 out of 10 coconuts are bought out by Marico. Can you believe that? I actually cross-checked this data. 7 out of 10 coconuts are bought by Marico and they go into making Parachute hair oil. 1 out of every 3 Indians uses Parachute hair oil. This is validated by a lot of different sources and it is actually true. एंड हर महीने करीब करीब इनके 5 करोड़ ट्रक्स का कंसाइनमेंट जाता है. 5 करोड़ ट्रक्स. दिस इज़ मेंशन बाय द ग्रेट मैन हिमसेल्फ, मिस्टर हर्ष मारीवाला, the man who's run this company and from Bombay Oil Trading or whatever, it started with humble beginning. So इसके पीछे एक बहुत अच्छी brand story है. Marico has a lot of stories behind it. There are brand stories, there are great stuff behind it. But let's have a look. What do they actually do? What are their key products? As you know, they are into a lot of self-care, personal care, and Parachute is one of the basic major products. Saffola cooking oil and Parachute hair oil में इनका कोई कॉम्पिटिटर प्रैक्टिकली आपको दिखेगा नहीं. Even Hindustan Unilever tried to do it with Nihar, but Marico actually gave them a tough fight, and that Nihar is a big story. Any one of you wants to know what happened with Nihar, you can just Google Marico taking back Nihar from HUL, and you will understand why. If you ask me, between HUL and Marico, we'll still stick to this one with our standard disclaimer. So it's one of India's leading consumer goods companies, operating in health, beauty, wellness space, and it was incorporated in 1988, as you can see here. The most important thing, the best thing I found is 90% ka market share. Look at this. It is a market leader in 90% of all its business segments. Isn't that crazy? It's amazing, right? The only point why I see most of the investors are not very bullish on this, because probably they feel that it's a very slow moving stock. They don't realize कि बीच में एक दो बार bonus allot हुआ है, stock split हुआ है. So the stock has actually given decent returns, but ये उस तरह का स्टॉक है, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप एफडी नहीं कराना चाहते और मैरिको में आप इवन इफ़ यू पार्क योर मनी हियर, आई डोंट थिंक द मनी इज़ अनसेफ. However, please go through our standard disclaimer in the description link of the video. Don't take a lump sum position in these kind of stories, because ये slow and steady moving stock है. आप इसमें SIP करके slowly position बनाएंगे तो ज़्यादा better फ्यूचर होगा. और ये एक तरह से आपको याद होगा ITC में, थैंक यू फॉर सो मच लव एंड कमेंट्स. ITC की तरह आप एक शेयर भी लोगे, नॉट एवरी डे, बट बिकॉज ITC इज़ 200 ऑट, दिस इज़ 400 ऑट, तो इसका आप हर हफ्ते में भी अगर एक शेयर लोगे तो पूरे साल भर में आपका अच्छा खासा शेयर काउंट भर सकता है, इवन इफ़ यू टेक once in a week or something, or 2 shares in a week or something. Again, the thing we like is debt free company. That is the first thing we look. लास्ट 3 ईयर्स का ROE देखिए 35% है, लेकिन मैं आपको लास्ट 10 ईयर्स का इसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूँ. सो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम है, 11% है लास्ट 10 ईयर्स का. एज यू कैन सी, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इज़ एक्सेलेंट, इट इज़ 16%, विच इज़ फिनोमिनल.
एंड स्टॉक प्राइस कैगार भी देखिए कंसिस्टेंट है 19%। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हुई है 10 साल में एट अ कंपाउंडेड लेवल, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 19% इज़ एक्सेलेंट। आई मीन दैट इज़ कंसिस्टेंट, दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड आर ओ ई देखिए 10 साल का आर ओ ई, कैन यू इमेजिन, इज़ 34%। इसका आर ओ सी ई देखते हैं 10 साल का, एक एवरेज जो आप निकाल सकते हैं, बट आर ओ सी ई कितना बैठता है। लुक एट दिस आर ओ सी ई नाउ। सो अगर आप ये पूरा एवरेज निकालेंगे, ये करीब करीब आपको 28 to 30% आर ओ सी मिलेगा। अगर मैं इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम अज्यूम करें कि 10 या 12% है, और आर ओ सी ई एवरेज इसका 33% है, 30% है, तो मतलब 18 to 20% का फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है कंपनी, विच इज़ दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर आइडियली। एंड द गुड पार्ट जो बहुत कम कंपनीज़ में हमको देखने को मिलता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में, इफ़ यू सी द प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है, तो अभी भी ऑफलोड और हो सकता है। फ्री फ्लोट पब्लिक के पास शायद काफ़ी कम है, 5.95%, सो दैट्स नॉट वेरी हाई। मे बी द प्रोमोटर्स कैन ऑफलोड सम स्टेक, बट लुक एट द एफ आई आई इंटरेस्ट मैन। एफ आई आईज़ में आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया होता है, विच ओनली द लाइफ मेम्बर्स वॉचिंग दिस वीडियो हुआ कनेक्टेड विद अस, उनको तो पता होगा दैट whenever FIIs इंक्रीज 25% के आसपास उनका स्टेक आता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। एंड इन मैरिको इफ़ यू कैन सी, ये देखिए FIIs का इंटरेस्ट स्लोली 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 बढ़ता जा रहा है। एंड द FIIs टेक पोजिशन इन अ स्टॉक आफ्टर इन डेप्थ रिसर्च फॉर एटलीस्ट 6 months to 1 year। उसके पहले वो पोजिशन बनाएंगे नहीं। एज़ यू कैन सी काफ़ी साल से 26% था, थोड़ा कम हुआ बीच में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है एफ आई आईज आर कमिंग बैक टू दिस कंपनी। सो इट्स अ क्लियर एफ आई आई कम बैक स्टोरी। और जैसे ही ये 25% के ऊपर जाएगा एफ आई आई का स्टेक, आप देखिए स्टॉक में क्रेज़ी मोमेंटम और वॉल्यूम्स जमा होंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये स्लो एंड स्टेडी ही रहेगा। ये कोई ऐसे 6 महीने में इस पर टारगेट देना इज़ नॉट द राइट वे टू डू टू गो अबाउट इट। अगेन वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज गाइज जो हर लेवल पे टेक्निकल में, सो इवन इन अ फॉलिंग एंड करेक्टिंग मार्केट, फॉलिंग मार्केट तो बोलना नहीं चाहिए, दैट विल नॉट बी अ राइट असेसमेंट। प्रैक्टिकली इवन इन अ काइंड ऑफ अ करेक्टिंग मार्केट, हर लेवल पे इसका आप सेंटिमेंट देखिए। सो वीकली, मंथली, डेली, 5 आवरली विच इज़ इंट्रा डे, मतलब पोजिशन, मतलब इंट्रा डे का भी अगर आप देखें, एंड आवरली, हर सेंटिमेंट में ओवरऑल समरी में आपको देखिए स्ट्रॉन्ग बाय नज़र आएगा, विच इज़ ऑसम। आई मीन बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा सेंटिमेंट, बिकॉज इनके फाइनेंशियल्स, इनके नंबर्स इनके फेवर में होंगे। सो बिफोर वी गो टू फाइनेंशियल्स, एज ऑफ नाउ जो प्राइस चल रहा है 401 के आसपास का प्राइस है। सो इसका पहला रेजिस्टेंस है 403.56, then 403.95. Actually this is hourly, so let me go back to monthly. या सो देखिए पहला रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, इसका मतलब आई थिंक फॉर श्योर पिवट पॉइंट जो है 407 का, अगर ये पिवट पॉइंट क्रॉस करेगा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो बिकॉज दिस इज़ अ FMCG काइंड ऑफ स्पेस एंड हेल्थ एंड वेलनेस स्पेस में काफ़ी एक्टिव है, 434 हमें लगता है जो इसका सेकेंड रेजिस्टेंस है वहाँ तक, बिटवीन फ्रॉम नाउ टिल जून जुलाई
within 2 months. It can definitely go till 434. हालांकि again Marico will go to 425, then again it might come back, so it gives a lot of chances for accumulation. It's an accumulation story. एंड इसका सपोर्ट भी पीछे अच्छा है, 390 पे सपोर्ट है, तो रिस्क कम लगता है, रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा है. काफ़ी लोग मैं जानता हूँ जो इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग एन एफडी दे ट्रस्ट कंपनीज लाइक दीज विच हैव वेरी क्लीन मैनेजमेंट, क्लियर गोल्स एंड क्लियर, छोटा भी अमाउंट होगा तो वो इसमें डाल के रख देंगे बिकॉज दे फील दैट दिस काइंड ऑफ कंपनीज जिनका इतना बड़ा पेडिग्री है, हाई पेडिग्री है, ये कभी पैसा तो डुबाने वाले हैं नहीं. And I think I agree. I think that's a fair assessment, guys. So the thing which we like is when a company grows consistently, even at this level, at the giant that Marico is, they are still going consistently annual level पे. Net profit margin देखिए 15.56%. That is the beauty of this company. And even during the pandemic, even in the bad times, they have shown consistent growth. हालांकि थोड़ा नेट इनकम आप देखेंगे स्ट्रेच हुआ था लास्ट ईयर बिकॉज इनका काफ़ी सारा जो पैराशूट है और बाकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं मिडिल ईस्ट में, और so many countries they are exporting. So because of the logistic issues, supply chain blockade, and because of the pandemic issues, काफ़ी exports पे hit हुआ होगा. So I can imagine, but still the company stood strong. See, अच्छी company की this is the point with the great companies. The great companies stick by the tough times, and because of their financial and operating leverage के वजह से वो टफ टाइम विथस्टैंड करके उसके बाद बाउंस बैक वाला ग्रोथ दे सकते हैं. तो ऑल इन ऑल, strongly speaking, we feel that at 400 rupees this stock is again a gem of a company. It's such a huge company coming to you at such a great price point. And वैसे भी आप देखेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग में the entry price should not really matter. If it's a consistent compounder, it will continue to compound your money at a consistent level. Anyway, ladies and gentlemen, Marico के बारे में जितना आप डिटेल में जाएंगे उतना कम है. वी हैव ट्राइड टू गिव यू जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी, बट इसके अलावा बहुत और डिटेल में जाना है तो आप एनुअल रिपोर्ट इसकी पढ़ेंगे, यू विल गेट अ बेटर आइडिया. Do that, as a DIY. You study the annual report, and if you get any doubt in any term or any terminology या कोई भी criteria, तो आप हमसे comments में पूछ सकते हैं. You can very well park your question in the comments. Thank you so much, and keep profiting.